Lesson number 1, the history of modern India. The history of modern India begins after 1750. So 1750 के बाद the history of modern India शुरू हो जाती है. The two earlier periods that preceded this period are the ancient and the medieval period. Modern period से पहले कौन से period थे? Ancient period and medieval period. अब ancient period क्या होता है? Period till 8th century. 8th century तक का जो period होता है वो ancient period होता है. medieval period होता है 8th to 18th century. The division of history into ancient, medieval and modern period is not done only for convenience but also for better understanding. तो हम लोग ने डिवाइड इसलिए किया है ताकि हम लोग के लिए कन्वीनियंट रहे, आसानी तो रहे, बल्कि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ कि अलग अलग पीरियड्स में हम कंपैरिजन कर पाएँ कि इस पीरियड में ये डेवलपमेंट हुआ था, इन दिस पीरियड दिस डेवलपमेंट टुक प्लेस. सो दैट इज़ वाई द हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 periods. In Europe, the modern period began in 16th century. यूरोप में क्या हुआ था? मॉडर्न पीरियड 16th century में शुरू हो गया था. इन इंडिया इट बिगेन इन द 18th century. यूरोप में 16th century में मॉडर्न पीरियड शुरू हो गया था. It started, and in India it started in 19th century. In comparison to foreign societies, many social evils were prevalent in the Indian society. तो कई सारे social evils थे, वो सब इंडियन सोसाइटी में अभी भी चल रहे थे. As soon as the Indians came in the contact with the Western culture, history and philosophy, they were inspired by the high ideals of ideas of liberty, equality and fraternity. जैसा ही इंडियन कल्चर को वेस्टर्न कल्चर के बारे में पता चला तो उनको लगा कि हम लोग की फ़िलॉसफी बहुत अलग है उन लोगों से. इन वेस्टर्न कल्चर देयर इज़ लॉट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. तो जो यूरोपियन कल्चर है या वेस्टर्न कल्चर है उनको बहुत ज़्यादा लिबर्टी दी गई है, छूट दी गई है, इक्वालिटी है उनके अंदर. फॉरेन इम्पेरियलिज्म नाउ स्टूड बिफोर देम स्टार्क नेकेड विद ऑल इट्स ऑपरेशन एंड एग्रेशन. तो फॉरेन जो कल्चर था, वेस्टर्न कल्चर था, उसको देख के इंडियाज़ बहुत खुश होने लगे और धीरे धीरे उसको अप्लाई भी करने लगे. Soon they started a national movement against the British rule. After a long period of sacrifices and untold mystery, they won their freedom in 1947. तो इसको देखते हुए उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया और देखते ही देखते 1947 में कई लोगों के सैक्रिफाइस के बाद, आफ्टर द सैक्रिफाइसेस ऑफ मैनी पीपल, द इंडिया वॉज फाइनली फ्री एंड वॉन्ट द freedom in 1947. Next topic is major developments during the 18th century. In this paragraph we will see that how much development took place in the 18th century. The 18th century is generally regarded as the darkest period in the history of India because after the downfall for the Mughal Empire there ensued a struggle for supremacy not only between the native powers but also between native powers of foreigners. जब उनका डाउनफॉल हो गया तो इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई क्योंकि अब कई लोग, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया वॉज नोन एज सोने की चिड़िया. इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है. तो उसको कब्ज़ा करने के लिए कई नेटिव पावर्स या कई फॉरेनर्स जैसे डच थे, फ्रेंच थे, ब्रिटिशर्स थे, कई लोगों ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया. Taking full advantage of the weakness of the Mughal Empire, various states became independent in different parts of India. तो मुग़ल एम्पायर जब ख़त्म होने लगा, the various states became interdependent. आज इंडिया से अलग हो गए. First of all, Nizamul Mulk founded the state of Hyderabad in 1724. Then taking advantage of the weakness of the central authority of Murshid Quli Khan and Alivardi Khan made Bengal independent. तो उसके बाद बंगाल इंडिपेंडेंट हुआ. The Marathas used this situation and made great inroads in Mughal territory under the Peshwaras. तो Europeans also did not sit idle. यूरोपियन भी खाली नहीं बैठे थे. They were quick to capitalize on the occasion and try to establish in India. तो यूरोपियंस भी सोच रहे थे कि किस तरह हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करें सो दैट दे कैन मेक देयर किंगडम इन इंडिया. Thus ensured a struggle between the Portuguese, the Dutch and the French and British.
तो एक तरह का कंपटीशन था बिटवीन हुम द पोर्टुगीज़, द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश. From 1744 to 1763, with brief interruptions, the three Carnatic wars were fought between the English and the French. So, इंडिया पे कब्ज़ा करने के लिए द फ्रेंच एंड द ब्रिटिशर्स दे फॉट 3 wars. फ्रेंच ने और ब्रिटिश ने 3 wars लड़ी थी. अल्टीमेटिवली द ब्रिटिश केम आउट सक्सेसफुल. तो लास्ट में ब्रिटिशर्स जो थे इंग्लिश वो जीत गए. Then they ensured a long struggle between English, the Marathas, Mysore and Hyderabad. Towards the end of 18th century, the English were ahead of other powers in their resources and strength. उसके बाद धीरे धीरे the English took over Marathas, Mysore and Hyderabad. धीरे धीरे इंग्लिश ने इन ब्रिटिशर्स ने मराठास को कैप्चर किया, मैसूर को कैप्चर किया, हैदराबाद को कैप्चर किया. आफ्टर दैट जो ब्रिटिश थे वो सबसे आगे निकल गए थे. In the confusion and disorder that prevailed in the country after the downfall of Mughal Empire in the 18th century had a far-reaching effect on the economy of the country. तो इसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा. As a result of prevailing lawlessness, both agriculture and industries suffered a lot. रूल तो कोई था नहीं. जब रूल नहीं था तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ अपने जो बिग कंपनीज थे जिन्होंने मोनोपोलीज बना ली थी, तो उनकी वजह से इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर और बाकी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा. द फॉरेन पावर्स स्पेशली द इंग्लिश ऑल्सो टुक अप इंडियन ट्रेड इनटू देयर हैंड्स. सो नाउ द इंग्लिश किंगडम वाज वेल इस्टेब्लिश्ड. अब इंग्लिश किंगडम बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया था. ऑल्सो टुक द इंडियन ट्रेड इन देयर हैंड्स. दे हैव टुक द इंडियन ट्रेड्स इन देयर हैंड्स. उन्होंने इंडिया का जो बिज़नेस था उसको भी अपने हाथ में ले लिया था. Exploitation made Indians poorer day by day and ruined Indian arts and crafts, for which India was famous throughout the world since ages. तो ब्रिटिश आए, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया. एक्सप्लॉयटेशन इतना किया कि हमारा जो कल्चर था क्राफ्ट्स का, आर्ट्स का, जिसके लिए हम लोग कई सालों से जिसके लिए हम लोग मशहूर थे, तो धीरे धीरे वो सब भी ख़त्म होने लगा. All got ruined. Main sources of history of modern India. We have enough sources at our disposal as far as modern period of the history of India is concerned. The chief sources are. तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि मॉडर्न पीरियड जो इंडिया में था उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी पता है. किस लिए पता है? इन सारे रीजंस की वजह से. द फर्स्ट इज़ प्रिंटेड बुक्स. Because of the invention of printing press during this period, a lot of books both in Indian and foreign languages are available which throw light on various aspects of Indian life. तो सबसे पहले बुक्स ने बहुत मदद की हमें मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया के बारे में जानने के लिए. किस लिए, क्यों मदद की? क्योंकि उस टाइम पे प्रेस आ चुकी थी. जब प्रेस आ गई तो कई सारी बुक्स लिखी गई. तो उस बुक्स ने हमको इंडियन कल्चर, इंडियन में कैसा कल्चर है, कैसे लोग रहते हैं, क्या एस्पेक्ट है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया. These books also throw a good deal of light on the progress made by the man in different fields such as medicine, engineering, art, technology, literature, history, mathematics, music, dance, drama and so on. तो इन बुक्स ने हमें कई चीज़ों के बारे में बताया, जैसे इंजीनियरिंग के बारे में, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा एंड सो ऑन. तो उस टाइम में, उस पीरियड में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, तो बुक्स ने हमें ये सब बताया. नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिफरेंट पावर्स प्लेड देयर रोल्स. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और अलग अलग जगह में देश के अलग अलग लोगों ने किंगडम्स में अपना पार्ट प्ले किया. ऑल दीज पावर्स एक्सचेंज डॉक्यूमेंट विद ईच अदर. और हम जानते हैं कि इंडिया पहले एक नहीं था, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था. तो क्या हुआ कि अलग अलग राज्य जब एक दूसरे से बात करते थे तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए बात करते थे. दीज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेल प्रिजर्व्ड एंड आर नाउ ईजिली अवेलेबल. ये सब डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर लिए गए थे और आज भी हम इसको पढ़ सकते हैं. फ्रॉम देयर स्टडी वी कैन ईजिली नो हाउ डिफरेंट powers dealt with each other and how ultimately the British overpowered them one by one. तो इन सब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स से हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले
किस तरह से एक किंगडम दूसरे किंगडम से बातचीत करता था और किस तरह ब्रिटिशर्स ने अपनी नई नई पॉलिसी लगा के अपने आप को पावर में ले आई. Newspapers, magazine, pamphlets, etc. We also get a lot of information about the modern period from a large number of newspapers, magazines, pamphlets, etc. तो हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल सकती हैं. किस ज़रिए से? with the help of newspapers, magazines and pamphlets which were printed in different parts of India in different languages by different people. तो वो इंडिया में पूरे इंडिया में प्रिंट होती थी. कौन लोग प्रिंट करते थे? पूरे इंडिया के लोग और डिफरेंट लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में. नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिकल बिल्डिंग. Many buildings are scattered throughout the country having many stories and episodes linked with them. तो कई सारी बिल्डिंग्स पूरी कंट्री में फैली हुई हैं और उन सभी बिल्डिंग्स से एक छोटी सी स्टोरी जुड़ी हुई है कि इस स्टोरी से ये बिल्डिंग आई, इस स्टोरी से ये बिल्डिंग आई. सम ऑफ सच बिल्डिंग्स आर इंडिया गेट, सेंट्रल सेक्रेटरीट, द राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट हाउस, एक्सेट्रा. Other works of art, various statues, rare specimens of paintings are not only important of works of art, but they also tell us something about physical features and achievements of the national leaders and great historical personalities. तो कई अलग चीज़ें जैसे स्टैचूज़ हो गया, पेंटिंग्स हो गई, इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ आर्ट जो अच्छे आर्टिशियंस होते हैं उन लोग से जो क्राफ्ट बनता है, जो इंडिया उसके लिए बहुत फेमस था. तो वो सब भी चीज़ें देश के बारे में बहुत कुछ बता जाती हैं.